सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है. सो we can conserve and manage water resources by adopting a river valley project. It involves the construction of dam could be small, big, medium, and on the main river and its tributaries, and creating reservoir. ठीक है. Dams are hydraulic structure which can be built of stone, rubble and help creating lakes and a reservoir, embankment and canal for irrigation. Constructing dam dates back to the 1st century BC. जब हम पढ़ते हैं कि वाटर बॉडीज़ जो हैं, जो जिसको जब हम ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखते हैं, सो वी गेट टू नो दैट वाई दिस रिजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट. सो द पॉइंट इज़ दैट वी human beings are consuming a huge amount of water and the resources of fresh water is very limited. As I said before that we are using it, and along with the use we are exploiting it too by various means. We are not making any effort to replenish the loss of water. अब ये जो रिप्लेनिश ऑफ लॉस है, इसको रिप्लेनिशमेंट है, जो वाटर का जो लॉस हुआ है उसको रीस्टोर करना, उसको जेनरेट करना, रिप्रोड्यूस करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम सिर्फ जो ग्राउंड वाटर है उसको हम निकालते रहेंगे तो डेफिनेटली दैट टाइम इज़ नॉट सो फार जब वो जो ग्राउंड वाटर है वो फिनिश हो जाएगा. ठीक है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ that we need to understand that how many things are there जो कि क्या टेक्नोलॉजी है, what are the tools through which we can reserve the water in a larger scale and that can be used further for the humankind. So earlier when you will go back in centuries you will get to know that people were actually enlightened with the thought of the reservation, and this reservation of water was so very essential. They also knew it that this reservation of water or the conservation of water is important for them to use it in a long run. तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, there are certain examples quoted in your book that श्रृंगावेरापुरा जो कि इलाहाबाद में है, यहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को चैनलाइज़ किया गया, जहाँ पर कि जो फ्लड वाटर ऑफ जो गंगा रिवर था उसको चैनलाइज़ किया गया. गंगा में जब भी फ्लड आया तो वो जो एक्सेस वाटर था उसको इलाहाबाद में एक जगह थी जहाँ पे इसको चैनलाइज़ किया. ठीक है. वैसे ही कलिंगा इन ओडिशा, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, दीज आर द थिंग्स जहाँ पर कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही डिसेंट वे में जो है वो रिजर्वॉयर्स बनाए गए, पॉन्ड्स बहुत बड़े बड़े बनाए गए, लेक्स बनाए गए, जिससे कि पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रखा गया रहा हो. ठीक है. When we talk about the conservation and management of water, there are certain things which comes in mind. You can understand that nowadays we have enhanced with a lot of technologies, a lot of things are coming up, a lot of tools and methods are coming up, and by using these means the reservation of water has become comparatively easy. ठीक है. अब वो क्या है, we have constructed the dams could be big, small, medium. उसके साथ साथ हमने embankments बना लिए, हमने reservoirs बना लिए, canals बना लिए. ये वो water units हैं जिसमें कि एक बहुत बड़ा amount जो है water का उसको हम reserve रख सकते हैं. और कभी भी जब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि India is a country which is totally based on the monsoon. So if there is a disturbance or there is a shift in the schedule of monsoon, these water bodies helps in the irrigation part, so that the agricultural development hardly hampers. So now we'll get to know that what are the dam क्या है. Dam is a reservoir, lake or impoundment created by a barrier built across the river. See,
एक, अब इसको हम ऐसे समझेंगे, इट्स अ सॉर्ट ऑफ बैरियर और ऑब्स्ट्रक्ट, जो कि क्या करता है, जो रिवर का फ्लो है उसके ऊपर, जो भी वाटर बॉडी जो फ्लोइंग है उसके ऊपर जब हम कोई बैरियर बनाते हैं वो बैरियर कहलाता है डैम। डैम को भी हम बहुत सारे पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर और मटेरियल के बेस पे वी कैन क्लासीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ, इट कुड बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, जो कि टिम्बर डैम्स होते हैं, एम्बैंकमेंट डैम्स होते हैं, मैंजरी डैम्स होते हैं। उनकी हाइट के बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई किया, हाई एंड डैम्स, मीडियम डैम्स, लो डैम। इनका पर्पस क्या है? डैम का पर्पस इज़ टू रिस्टोर द वाटर ऑन इन द रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होता है? डैम बनने के पीछे एक बहुत बड़ा एरिया जो होता है उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। रिजर्वॉयर मीन्स जलाशय, जो बहुत बड़े अमाउंट में जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं। तो डैम बेसिकली क्या होता है? डैम एक ऐसी यूनिट है जो कि रिवर फ्लो को क्या करती है, सबसाइड करती है, और जो एक्सेस वाटर है, जो जैसे कहीं पे अगर फ्लड आया या कुछ ऐसा है तो जो भी एक्सेस वाटर है उसको रिस्टोर कर लिया जाता है रिजर्वॉयर्स में या उन जलाशयों में जो कि डैम के पीछे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि क्या है डैम को क्यों मल्टीपर्पज़ कहा गया है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या फीचर्स हैं जो कि आज की सोसाइटी को कंपेल करती है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज़ मैंडेटरी। पहला, प्रोड्यूसिंग हाइडल पावर। सी, जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम बनाने के साथ साथ उसमें चैनल बनाए जाते हैं, गेट्स बनाए जाते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि या सुना होगा कि ये इस डैम के गेट ओपन किए जा रहे हैं, इसकी वजह से पानी में फ़्लो हो गया है, नदियाँ बढ़ना शुरू हो गई हैं। कभी कभी आप देखते हैं जो नदियाँ हमारे शहरों से होकर के निकलती हैं, कभी कभी उनमें पानी का लेवल बहुत कम होता है और कभी कभी द लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। हाउ? वो जो डैम होता है उसके जो गेट होते हैं वो ओपन कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, जो रिजर्वॉयर है जहाँ पे पानी इकट्ठा किया गया था उस पानी को हम रिवर में छोड़ देते हैं, जिससे कि जो पानी की इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो इसका एक जो फीचर तो ये है कि जब कभी नदियों में पानी कम होने लगता है तो वो जो रिजर्वॉयर्स हैं उसमें से पानी निकाल के नदियों को सप्लाई कर दिया जाता है। इसका एक दूसरा हमें बेनिफिट क्या मिलता है वो है हाइडल प्रोडक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। कैसे? जो आपके जो डैम के गेट होते हैं उन्हीं के पास टरबाइन्स लगे होते हैं। ये टरबाइन्स के ऊपर जब हम पानी गिराते हैं तो वो घूमते हैं और उनके घूमने से, उनके मूवमेंट से, उनके स्पिनिंग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसको बाद में हम लोग फीडर्स में भेज देते हैं और उन्हीं फीडर्स से फिर वो हमारे घरों में आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने उस पानी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ कर लिया है, सो द डेफिनेटली द क्वालिटी ऑफ वाटर गेट्स डाउन। सो द आंसर इज़ नो, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग any element of the water, we are using just the force of the water। हम उसके फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि उसके मिनरल्स को। तो उसमें से वाटर जो है वो, उसमें कोई भी डिप्लेनिशमेंट नहीं आता है। ठीक है, दूसरी चीज़, मल्टीपर्पज़ डैम्स जो होते हैं, डैम जब बनाया जाता है तो उसके पीछे, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, जलाशय बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में पानी स्टोर किया जाता है, जो कि कभी भी अगर सूखा पड़ रहा है कहीं पे या किसी और जगह पे ज़रूरत है, कैनाल्स में ज़रूरत है, तो वहाँ पे वाटर सप्लाई ईज़िली की जा सकती है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज़। ये आपको पता ही है। उसके साथ साथ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। देखिए, जहाँ पे डैम्स बनते हैं, दे आर अ वेरी यूनिक फीचर। I don't know how many of you have seen the dams in real, but if you'll go and you'll see, they are such a beautiful construction. This is something which is very unique, you will find it very beautiful. So इसको recreational activities में कैसे, इसी के आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डिज़ाइन कर दी जाती हैं जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और कहीं के भी जब टूरिस्ट आ रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको एक सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग मिलती है, जिससे कि उस जगह की इकोनॉमी भी डेवलप होती है। तो ये रहा आपका। इसी के साथ साथ कुछ आपके पास मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है जो कि सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई और इरिगेशन के लिए। जो हीराकुंड है विच इज़ मेड ऑन महानदी
and Nagarjun Sagar, which is made on Krishna River, they are used for hydel power, irrigation and flood control. ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो फ्लड कंट्रोल के लिए, इरिगेशन के लिए, पावर प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है. सो दैट इज़ हाउ ये जो डैम कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इसको मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देती हूँ. डैम वो यूनिट होती है जो कि किसी भी फ्लोइंग वाटर बॉडी के ऊपर बनाया जाता है उसको सबसाइड करने के लिए, उसके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए. इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है, इसी के पीछे रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं जिसमें कि उस नदी का पानी स्टोर कर लिया जाता है, ताकि वो पूरा पानी सिर्फ ऐसे बह के वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि नदियाँ बहते हुए समुद्र में मिल जाती हैं. ठीक है, तो उसको स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी जो है वो वाटर स्कार्सिटी हो रही है, सो वी कैन गिव सप्लाई फ्रॉम दीज reservoirs. Second thing, there are certain uses, not certain, a very important impact of dams on the human life. Electricity production, we cannot imagine the urban India without electricity, so this electricity production is the most important element which is highly made from this dam. उसके उससे जो वाटर निकलता है उसको टर्बाइंस पे गिरता है और उसके बाद वाटर फ्लो को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए. उसी के साथ साथ फ्लड कंट्रोल करता है. नदियों का बहुत जो बहाव तेज़ होता है, उसका जो बहुत फ्लो होता है बारिश की वजह से या फ्लड की वजह से, तो उसको भी ये डैम्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. अच्छा, ये हमने पढ़ा कि डैम के एडवांटेजेस क्या हैं, बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि डैम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द डैम, देयर आर ऑलवेज अ डिबेट ऑन मेकिंग एंड destroying. ठीक है, कैसे? there are some organizations who always advocates of promoting dams on the river. They are always very productive and constructive on the concept of dams, but there are a very strong set of people who oppose it. तो वो जो अपोज़ करते हैं डैम को, ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ सकता है कि जब डैम्स इतने अच्छे हैं तो क्यों उनको अपोज़ किया जाता है. देखिए, अपोज़ करने का रीज़न क्या है? अपोज़ करने का रीज़न ये होता है कि दो डैम्स हैं, those dams are made to restrict the natural flow of the river. means जो रिवर का फ़्लो है उसको ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वी कैन सी इन अ लॉन्ग वे, इन अ लॉन्ग रन, दैट द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ नॉट यूनिफॉर्म. समवेयर इट्स वेरी deep, somewhere it's very shallow. So it shows that the flow of the river or the water level is not equal everywhere. So अगर water level equal नहीं है, so the places where the water is deeper or the river is deeper, definitely they have more water for irrigation and for other human activities. But the places where the water is shallow, where the river is shallow, it makes the life of that place difficult because they need some other sources of irrigation. ये हुआ फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सेसिव सेडिमेंटेशन ऑफ द बॉटम. सेडिमेंटेशन क्या है भाई? देखिए, व्हेन रिवर कम्स, रिवर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फर्टाइल मिनरल्स एंड nutrients with it, and these new minerals and nutrients flow everywhere and they gives the fertility to the agricultural land. अब क्या हुआ? when we have made a dams somewhere, a high end dams अगर हमने बना लिया, तो जब water we store it in the reservoir, it's not just water which stays there, it is always the sediment. वो जो small particles होते हैं, वो जो सबसे ज़्यादा nutrient feature होते हैं पानी का, वो भी इकट्ठा हो जाता है. छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो रुक जाते हैं. ठीक है, और उससे क्या हो जाता है कि जो लैंड का जो फर्टिलिटी था वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमने मिनरल्स को एक जगह पे स्टोर कर दिया. दूसरी चीज़, जो आपका जो सराउंडिंग है वो कैसे डिस्टर्ब होती है, सबमर्जेंस ऑफ सराउंडिंग लैंड अंडर वाटर. अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है रिजर्वॉयर का, ये बहुत बड़ा होता है. इट इज़ आउट ऑफ योर इमेजिनेशन, तो इतना बड़ा कहीं पे भी जलाशय बनाने के लिए
उतने बड़े लैंड की ज़रूरत पड़ी रही होगी, और उस लैंड पे पाया जाने वाला जो वेजिटेशन था, उस लैंड पे पाया जाने वाले जो जीव जंतु थे, जो पौधे थे, जो लाइफ थी वहाँ की, वो जो वेजिटेशन था, वो क्या हो गया, वो स्पॉइल हो गया, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको हटाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है जब हम डैम को बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, ये सारे वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये कहा जाता है कि आपका जो नेचुरल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ ह्यूज डैम समवेयर, what government does, government has to shift the crowd from that place. अब जैसे अगर आप अपने शहर का एग्जांपल लेते हैं, आप अब यहाँ पे जो आउटर एरिया में अगर कहीं डैम बनना है, तो जो गवर्नमेंट है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो आम आबादी है उस जगह के आसपास की, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट ईजी, दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ इट्स वेरी hurting, it's painful, because people, those who have spent whole of their life at a place, at once आप उनको कहें नहीं अब आपको यहाँ नहीं रहना है, this place does not belong to you, you have to shift it, you have to shift yourself. So what will happen, this will cause a sort of pain to them, and that is how this construction of dam is not that much good. ठीक है, यहाँ पे एक आपको एक एग्ज़ाम्पल है दैट नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो ये है नर्मदा जो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने ये कहा था कि नर्मदा रिवर जो है उस पे जो है ये डैम जो है वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ को उन्होंने रिलेट किया, और उन्होंने बोला कि ये जो डैम है इससे जो है जो अंडर वाटर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो वहाँ का वेजिटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लोकल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। So on the humanitarian grounds, they have revolt they have created, and they said no to the construction of dam in these areas. Okay, now the next topic would be the rainwater harvesting. Okay.